So guys, a very good morning to all and welcome back to our channel. आज एक बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए स्पेशली क्योंकि आज हमारे सूरत के कमिश्नर मिस्टर तोमर साहब की फेयरवेल पार्टी है। उनके फ्रेंड्स दे रहे हैं, जो मेरे दादा है और उनके फ्रेंड्स। आप देख सकते हो वहाँ पे इस तरह का पूरा सेटअप हमने किया है। वहाँ पे माइक है, कैरियोके, सिटिंग एरिया एंड वहाँ पे है ब्रेकफास्ट। तो यस, उनके लिए मैं स्पेशली आया हूँ। उन्होंने बोला कि ये पूरी चीज़ व्लॉग करो कि हम ये चीज़ को बाद में भी देख सकें और हम मेमोराइज कर सकें उनकी प्रेजेंस और उनकी जो कंपनी है उनके साथ। तो यस, इट्स अ वेरी स्पेशल डे। सारी अरेंजमेंट डन हो गई है हमारे, और बस अभी तो सब आएंगे। तो यस, वी विल स्टार्ट आवर फंक्शन एंड छोटा सा व्लॉग बनेगा, बहुत ही बढ़िया। एंड विल ट्राई टू कैप्चर सब मोमेंट्स जितनी बढ़िया हम बना सकें। सॉरी, मेरा थोड़ा आवाज़ आपको बैठा हुआ लग रहा होगा क्योंकि मेरा नाक जाम है टोटली। तो यस, आई एम नॉट इन अ गुड स्पीच राइट नाउ, जिससे मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकूं कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और यस, इतनी बड़ी हस्ती है जिसके साथ मैं व्लॉग करने वाला हूँ आज फर्स्ट टाइम। वैसे तो मैं उनको काफ़ी बार मिल चुका हूँ, हमारे घर भी आ चुके हैं वो। दादा के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, यस, और हम सबको भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। पर आज यहाँ पे एज अ सोशलाइट मैं उनसे पहली बार मिलूँगा और अब पहली बार उनका वीडियो लेंगे और यस, फ़ोटो वोटो निकालेंगे सबका। लेट्स सी हाउ द इवेंट गोज नाउ, राइट। थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही आएंगे विल स्टार्ट अगेन। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग। नहीं, उसकी स्टार्ट करनी है। अब तुम्हारा I request our honorable guests and everybody to please sit down so that we can start a small musical program. Please sit down. Good morning. We all know that we have gathered today together here for a very nice purpose, I suppose. It's a musical kind of a send-off. I wouldn't call it send-off as well because he will never go away from our minds, I suppose. At least for some people in whose life he has made a lot of difference. Lesser said, better, because I won't be able to fulfill that kind of a gap that he will create when he is not here. May I, sir, today welcome him on this auspicious occasion, and also we have our Venus K. Malik Sevanti Bhai. We have Commissioner Dr. Narendra. I think another commissioner has gone. And we are also very happy to see our secretary here. Girish Bhai, of course, Girish Luthra, who doesn't know his name? If I miss it out, I'm sure you will all feel. Even the mention itself is good enough, I suppose. We thought many a thing that how we should go about, So we said initially we'll have a party, then party where, who will be coming, who will not be coming. So everything was, and whether he is available, not available, and whether we should call it a send-off or he's going away from us. So a lot of things were there. And after some time, then we decided, no, we'll make it an informal kind of a musical setup, and we'll give a musical send-off to him. He's a personality, poetical, musical, and whatnot. Lesser, I don't think I have words to speak about his personality as such, and I dare not. But may I now request our members who are part of the organizer to give welcome. We had requested Mrs. Tomar also, and she had agreed, but I think due to some
unavoidable reasons, she is not here. I think there's some budget session and so on. So we spoke to her yesterday. So of course we'll be missing her. Join us. Please join us. Let us join everybody. How's everything? Our best wishes. એ સુવાસ તો ફેલાવતા આવ્યા છે આ સુવાસ બધે જ ફેલાવતા રહે. Thank you. Thank you very much. આ તો સુગંધી ફૂલોનો મોટો બગીચો છે. થેન્ક યુ અશ્વિનભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Maybe अश्विन भाई थोड़ा सा आप बोलिए कुछ. ठंडी से रोटी नहीं शायद में ठंडी नहीं लगी. वैसे तो एक जज का काम ज़्यादातर सुनना होता है और ख़ास करके लिखना होता है. बोलने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ गलती हो तो समझ आता हूँ. रिस्पेक्टेड श्री अजय कुमार तोमर, कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत, वेलकम सर. आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला दोबारा हमको, and thank you very much for coming. Respected Sri SP Shah, well-known businessman in diamond industries and management group, welcome sir. आप भी आए इस प्रोग्राम में. And respected members of Gymkhana Surat, officer Gymkhana Surat, I welcome all of you. सर की खास करके तोमर सर की बात करें तो बहुत ही उनका जो काम है बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ सूरत में. और ख़ास करके सर इज़ वेरी प्रोफाउंड मैन एंड वर्सेटाइल पर्सनालिटी. उनका कैरियर का खास करके ग्राफ देखा जाए तो उन्होंने बहुत सी जगह काम किया है. खास करके सर इज़ IPS ऑफ 1989 बैच. उनका BSc MPA LLB रहा है. स्टार्टिंग में उन्होंने ASP गोंडल, SP गांधीनगर, SP अमरेली, SP भावनगर, SP जामनगर, SP राजकोट, रेंज DIG गांधीनगर, IG ATS, जॉइंट CP अहमदाबाद, IG BSF, EDG CID क्राइम, स्पेशल CP, और प्रेजेंटली यहाँ 3 साल से भी ज़्यादा से सूरत में CP से उनका सर्विस चल रहा है. सर का जो कैरियर के दौरान उन्होंने पुलिस मेडल, मेरिटोरियस सर्विस में भी उन्होंने प्राप्त किया है. उनको प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिला है और स्पेशल अचीवमेंट भी सर की बहुत है. और ख़ास करके उन्होंने विजिटिंग फैकल्टी IIM में भी उन्होंने लेक्चर दिया हुआ है अहमदाबाद में. सो सर ने यहाँ सूरत में भी बहुत अच्छा काम किया है. और ख़ास करके आज के प्रोग्राम में हम सब ने एक तरफ से ऑर्गेनाइज किया, आप सब लोग यहाँ पे आए तो बहुत ही अच्छा लगा. और बेस्ट विशेष सर को और हमारे पूरा ग्रुप की और जिमखाना की तरफ से, और वो हेल्दी रहे, हमारे साथ टच रहे, और बेस्ट विशेष. उसकी क्या हालत होगी उस वक्त, क्योंकि आज जो जैसा वो बोलते हैं हमको लगता है कि यार अभी कहीं से कुछ होने वाला है. तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हम कहते हैं कि कीर्ति है तभी कीर्ति है. तो मे आई रिक्वेस्ट कीर्ति भाई टू स्पीक फ्यू वर्ड्स. હૃદયસ્થ આત્મીય પોલીસ કમિશનર માન્ય શ્રી તોમર સાહેબ અને સૌ મારા જીમના સાથી મિત્રો, સેવંતીભાઈ, ડૉક્ટર નરેન્દ્ર કુમાર, જીમના સેક્રેટરી,
શ્રી દિનેશભાઈ લુથરા અને અમારી 9 જણની સારી એવી ટીમ ઓમપ્રકાશજી, મહેન્દ્રભાઈ, જજ સાહેબ, રાજેશભાઈ, ભાઈ કિરીટભાઈ વાઘાણી, સવળકુમાર, આ અમે સૌ ગ્રુપ સાથે મળી, સાહેબ સાથેનું અમારું રોજનું ગ્રુપ છે, સાથે મળી અને રોજ અમે સવારે લગભગ 1 કલાક સુમધુર ગીતોની વાણી સાંભળતા હોઈએ છીએ. એટલે સાહેબનો ગમતો વિષય હતો એટલે સવારે સંગીત રાખવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને સાહેબ માટે એક વાત કરીશ કે સાહેબ એવા સમયે સુરતની અંદર આવ્યા કે જે વખતે કોરોનાએ આખા શહેરને ભડો લીધો હતો, ત્યારે એ વખતે સાહેબે જે સુંદર કામગીરી કરી છે શહેરની અંદર, એ કદાચ કાબિલે તારીફ હતી એવી કામગીરી સાહેબની આ સુરતમાં રહી છે. સાથે સાથે સાહેબે આવીને શરૂઆતમાં એમના જે કંઈ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જે લોકો પોતાની કોઈ પણ ફરિયાદ કરવા માટે જતા હોય ત્યારે આવનાર અરજદારને કેવી રીતે સાંભળવો અને કેવી રીતે એની સાથે વાત કરવી, એ સારામાં સારો જે કદાચ આજ સુધીમાં શીખવાડ્યો હોય તો એ માત્ર તોમર સાહેબે શીખવાડ્યો છે. કારણ કે અરજદાર આવે છે ત્યારે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પહેલા સમય એવું થતું કે એની સાથે વર્તન થતું નહોતું, પણ છેલ્લા 3 વર્ષથી આપણે સુરતની અંદર પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો જે વ્યવહાર જોઈએ છીએ, લાગે કે ખરેખર સાહેબ આપણા આ નેતૃત્વમાં ખૂબ સારી રીતે આ વ્યવહાર થયો છે. સાથે સાથે બીજી વાત કરી સાહેબે જે વ્યાજખોરો માટેને કંઈ કર્યું, વ્યાજખોરોને એવી રીતે પકડીને જેલ ભેગા કર્યા, ખૂબ સુંદર મજાની કામગીરી કરી. છેલ્લા ઘણા સમયથી સુરત શહેરની અંદર જે કંઈ ગુનાઓ, આટલું મોટું શહેર છે, ગુનાઓ બનવાના, ગુનાઓ કોઈની તાકાત નથી રોકી શકતી, પણ ગુનાઓને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કર્યું છે. જે કંઈ પણ ગુનાઓ થયા છે એ ગુનાઓને ત્વરિત ઉકેલવાની કામગીરી પણ આ સાહેબને ખરેખર અભિનંદન આપવાને પાત્ર છે. એટલી સુંદર કામગીરી સાહેબે કરી છે. સાહેબ અમારા આપ સાહેબ બહુ મિલનસાર સ્વભાવના સાહેબ, અને અમે અમારો જીમનો પરિવાર પણ એટલો મિલનસાર સાહેબ. તો અમારા બધાની સાથે જેમ દૂધમાં સાકર ભળે એમ એવા સરસ રીતે ભળી ગયા છે. સાહેબ આપ માટે તો ખરેખર અમારી પાસે કોઈ એવા શબ્દો નથી કે આપણે કયા શબ્દોમાં આપણે આમ કરીએ, કયા શબ્દોમાં એટલું બધું ઊંચા શબ્દોનું સ્થાન છે કે સ્થાન કદાચ અમારી પાસે શબ્દો હું તો નહીં કરી શકીશ. બીજું સાહેબની અંદર એક સરળતા, કોઈ પણ બાબતમાં એટલી સરળતા છે કે ન પૂછો વાત. આજે साहब याद है नहीं है। और वो शेर कुछ आज के माहौल से बहुत जुड़ता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए, नहीं तो हम लोग साथ में जुड़ेंगे। उतरे नहीं हो आज भी मेरे जहन से, ऐसे रुके हो जैसे हल्का बुखार। એક્ઝામમાં પણ સાહેબ મારા કીર્તિ છું, મારા કીર્તિ માટે કે કેટલા લોકોને જોઈએ છે. अभी मैं रिक्वेस्ट महेंद्र भाई, जो शायद हमारे और कमिश्नर साहब के बीच में एक सूत्रधार के तौर पे हमेशा रहे हैं, मैंने गलती से परसों नरसों कुछ कह दिया था कि साहब जो है इनकी चाल जब ये गेट में आते हैं, यहाँ तक आते हैं तो कुछ और होती है, और जैसे ही सीपी साहब को देखते हैं तो इनकी बिल्कुल ऐसे अटेंशन हो जाती है। तो मैंने कहा साहब आते तो टूटे फूटे हैं, मगर यहाँ एकदम वो हीरो जैसे बन जाते हैं, तो उसका श्रेय जिसको जाता है उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज महेंद्र भाई। સાચી વાત છે. तोमर साहब, सेवंती भाई, नरेंद्र कुमार, गिरीश भाई, शर्मा साहब, गायत्री बहन, राजेश भाई, सेवंती साहब, राजीव जी, हम जी सब दोस्त बैठे हुए हैं. इसका नाम रेहजा जज साहब. ये जो हमारा जिम खाना है तो ये पता नहीं चला कि एक्सरसाइज करते करते कब से ये फैमिली हो गया. 15-20 सालों से यहाँ आता हूँ, बहुत दोस्त है, तो ये 1-2 साल में कुछ हुआ है, उसको मैं शायद मैजिक कहूँगा. ये जो ग्रुप बना है, जो ग्रुप के बारे में जिक्र होता रहा, वो ग्रुप का कोई उसमें ये माला के अंदर कोई जो लिंक है, कोई सीक्रेट है, वो सीक्रेट है तोमर साहब. तोमर साहब के बारे में कीर्ति भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से बात की, जज साहब ने भी की.
भाई को याद करता हूँ, प्रवीण भाई को। प्रवीण भाई साहब को मिले वॉकिंग ट्रैक पे, तो उन्होंने बोला कि साहब आप जिम खाने में जाते हैं और आप मेरे भाई के दोस्त हैं। तो तोमर सर ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो सबका दोस्त हूँ। तो प्रवीण ने आके मुझे बोला, फिर प्रवीण ने एक लेटर भी लिखा उनको, ही वॉज सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड बाय द सिचुएशन। उन्होंने एक लेटर भी, एक चिट्ठी लिख के साहब को भेज दी, वॉज अप्रिशिएटिंग। तो ये जो साहब में जो बात है वो सबके दोस्त है, सबसे मोहब्बत है। यहाँ जिस तरह से यहाँ जो एटमॉस्फेयर बना है, इसका 100% करेक्ट। अगर किसी को जाना है तो ये हमारे तोमर साहब को जाना चाहिए। दूसरे 2 दिन पहले इन्होंने कुछ शायरी सुनाई, जो मुझे शायरी तो याद नहीं रही। तो इसका जो मीनिंग वो ये था कि जो लोग उम्र बढ़ती जाती है, कुछ तकलीफ भी है, तो उनका रास्ता जो है वो दोस्तों के पास है। अगर वो डॉक्टर की जगह वो दोस्तों से दवा ले ले तो उनकी जो डिसीज़ है वो दूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ काम तोमर साहब ने ये पूरे 2 साल में किया है। और मैं 100% कहूँगा साहब से कि ये आप जा ही नहीं रहे, यू आर ऑलवेज देयर हियर। कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में शहर बदलते हैं, दोस्त नहीं बदलते हैं, दोस्ती बिल्कुल नहीं बदलती है। और साहब की जो काम करने की बात भी कीर्ति भाई ने कही, मैंने भी 1-2 एक्सपीरियंसेस है उनका। एक्चुअली ही हैज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल ह्यूमन टच। वो एक बात जो मैं सुबह सोच रहा था क्या बोलूँ साहब के लिए, तो एक बात ऐसी आई कि साहब से जो शुरू में जो हमारी बात हुई, थोड़ा परिचय हुआ शर्मा साहब की, तो उसमें भी ये कुछ म्यूज़िक की बात थी। मैंने मुकेश का पुराना गीत याद किया और उनको साहब को बोला, साहब बोला ठहरो ठहरो, आपको तो आधी लाइन मुझे याद नहीं कर सका मैं। इन्होंने तो पूरे चारों 4 जो भी स्टांजा है वो गा के सुनाए। वेरी इनफॉर्मल इन दोज डेज, जैसे ऐसे ही खड़े थे। एक बात ये भी है कि साहब इतने पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, सक्सेसफुल है। एक रीज़न उसकी मेमोरी भी, जो मेमोरी कमाल की मेमोरी है। कभी भी कोई मतलब ऐसे कोई सॉन्ग बोल दिया या कोई बात बोल दी। मैंने उनकी एक स्पीच सुनी थी हिंदी में, शायद आप लोगों ने भी सुनी, जो स्टेडियम में इन्होंने कही थी, बाप रे बाप, इट वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट सब्जेक्ट देन वॉट एवर इज डूइंग। तो ऐसे मैं तो बोलना चाहूँ तो 1 घंटा ही बोल सकता हूँ, कीमती समय है। साहब ने जो दिया है, तो मैं एक लास्ट पॉइंट है मेरा। आई रेड वन बुक 75 बहुत साल पहले, डॉक्टर बेन डायर की, द नेम ऑफ द बुक वॉज इलानीज गिफ्ट। वो इलानी का एक कैरेक्टर करके वो हमें सिखाते हैं ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा तोमर साहब इज ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम तोमर साहब। मैं ये बात याद रखूँगा। कभी भी कोई फैमिली है, कोई हमारी बात हो जाती है, तो साहब को देखो साहब ऐसा होता है, अरे महेंद्र भाई चल गया तो ऐसे नहीं चलता है। तो ये जो एक एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, भाई बच्चों की कोई मैं कंप्लेन कर देता हूँ, देखो ना हर्ष ये करता है, वो तो बच्चे नहीं करते कौन करेंगे। तो ये सब बातें हैं, तो ये बातें हम याद रखेंगे और इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, तो इससे हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। सो वंडरफुल टुडे, वी हैव अ ग्रेट डे टुडे एंड आई एम इंडीड थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम। इट इज़ एब्सोल्युटली इनफॉर्मल प्रोग्राम। शुरू में तो ऐसा हम 8-10 जने, साहब ने बोला था कि 10 जन चाय पिएंगे, तो हम सब चाय पी रहे हैं सब। नॉट वेरी बिग, आई मीन फॉर्मल ग्रुप, इट इज़ इनफॉर्मल ग्रुप। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, साहब को याद करते रहेंगे। ऑल अवर बेस्ट विशेस। थैंक यू। અને એકદમ નિકટ બનાવી અને આપણી વચ્ચેથી રિટાયર થઈ અને હવે ટાઈમિંગ એટલા માટે કહું છું કે મેડમ અત્યારે ગાંધીનગર છે, ત્યાં જઈ રહેલા તોમર સાહેબ, ડૉક્ટર नरेंद्र कुमार जी, मेमोरी के लिए लाइक टू गिव इट। બધા આવજો સર. આજે
खूब खूब आभार होता साहेब आप दिलच से आमचे ये कहा जाता है कि सोल्जर्स नेवर डाई, दे फेड अवे। कुछ एक ऐसी शख्सियत बाकी जगह भी है जो कभी रिटायर नहीं होंगे, कभी जाएंगे नहीं, हमारी यादों में रहेंगे, हमारी बातों में रहेंगे। या वो यही चीज़ तोमर साहब के बारे में शायद कही जा सकती है, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे में। मैं आखिर में आप लोगों के बिहाफ पर साहब को पहले आने की धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम नहीं आ सके, उसके लिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया। साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा हमने इतना कुछ बोला है सर, शायद बहुत ज़्यादा बोला होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने शब्दों में हमको कुछ बताइए सर। कर्नल साहब ने कहा कि थोड़ा सा बोलना है। मैं बिल्कुल आज्ञांकित रहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिमखाना के मित्रगण, आदरणीय वडीलों, भाइयों, बहनों, सब कुछ ही मैंने मांग लिया तुमको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अब इतने सारे दोस्तों की दोस्ती जो मिल गई, जो स्नेह मिल गया, जो प्रेम मिल गया, उसके बाद मांगने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। और जहाँ तक रिटायरमेंट का सवाल है, उसके लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ नहीं करना होता, और कुछ ना करना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को आता है। मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करता रहा हूँ, और मैं आशा रखता हूँ कि वे कुछ ना करने वाला काम, मैं थोड़ा सा गहराई में बताऊँ आपको कि दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, आदमी कुछ ना कुछ करता है, और कुछ ना हो तो फिर कुछ काम ढूंढता है, प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम खड़ी करता है। रिटायरमेंट का मतलब है कि अभी सबसे दूर हट जाएंगे। आप ध्यान करें, आनंद में रहें, और दिमाग में कोई भी विचार ना आए, तो तब आप सही मायने में रिटायर हो सकते हैं। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो शब्द सभी आदरणीय और स्नेही मित्रों ने मेरे लिए कहे, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जिमखाना और पर्टिकुलरली ये जगह, ये ऐसा बाम रहा है कि पूरा दिन कितना भी काम करो, कुछ भी करो, जो कुछ है यहाँ आके आराम से थोड़ी देर खुल के बात की जाए। थोड़ी सुरावली भी आती हैं। हमारे कुछ एक कौवे दोस्त भी हैं जो आके डेली बैठते हैं, आज भी यहीं बैठे होंगे, गारंटी की बात है। कुछ एक खिसकोली भी हैं, पीछे खिलते हुए फूल भी हैं, नदी का पानी भी है। तो ये जो फ़िज़ा है, ये फ़िज़ा एक बार आदमी इसको आत्मसात कर ले तो फिर ये आपको कभी छूटती नहीं है, और आपसे भी फिर ये छूटती नहीं है। तो आप लोगों ने जितने प्यार से मुझे यहाँ सूरत में रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आना जाना, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि सूरत में कभी पोस्टिंग होगी। मेरी पूरी उम्र निकल गई थी गुजरात में, अलग अलग, मोस्टली सौराष्ट्र में रहा, फिर अहमदाबाद, नॉर्थ गुजरात वगैरह में रहा, फिर BSF में रहा। ऑल ऑफ ए सडन अगस्त 2020 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई। मैं जब आया था तो लगभग बहुत कम लोगों से परिचय है, जैसे सेवंती भाई से था, गिरीश भाई से था, और गिनती के 2-3 लोगों से मेरा परिचय था, और मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ। लेकिन जब जा रहा हूँ तो लगता है कि पूरा शहर मैं इस शहर का हो गया हूँ। और किसी शहर का होना, उसके बाद ना वो शहर आप में से निकलता है, ना आप उस शहर से निकल पाते हैं। आई बिन वेरी वेरी लकी, बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे यहाँ रखा। 3-3.5 साल का समय कम भी नहीं होता। हम लोग कहें कि मतलब क्यों जा रहे हैं, अब 3.5 साल तो इतना लंबा अरसा होता है। मैं दिनों को गिनता हूँ, 3.5 साल नहीं, उसमें 365 से मल्टीप्लाई करें इतने दिन होते हैं, उसको 24 से मल्टीप्लाई करें इतने घंटे होते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करें इतने पल होते हैं इसमें। सूरत हैज़ बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मी। यहाँ के लोगों को कोई बात इनकी सुन ली जाए और उसके बाद इनको रीज़न किया जाए तो मान लेते हैं। और मैं मानता हूँ इतना बड़ा कोई शहर ऐसा हो, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी।
मैं यहाँ से पहले बहुत शहरों में रहा और लगभग हर शहर का मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा था। अहमदाबाद में बहुत साल तक रहा एंड हैड अ वेरी गुड टाइम इन अहमदाबाद। काम भी जितना मेरी अंदर ताकत थी उतना सब मैंने किया, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि ये शहर में कुछ अलग है। अब तापी का पानी मैंने भी 3.5 साल पी लिया, अब वो रहेगा आप लोगों के अंदर तो है। बाकी और बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, कटर साहब ने कहा था थोड़ा ही बोलना है। एक मामूली सा ख्याल है, मतलब मैं हूँ क्या, एक मामूली सा ख्याल हूँ मैं, कभी आऊँ तो मुस्कुरा देना। थैंक यू। जवा जवा हवा भी है, रवा रवा सुना रहा है समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवा जवा। वो काफिले बहार के बिखर गए रंग से, किसी के इंतजार के, लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियाँ सुना रहा है समा, फजा भी है जवा जवा। जाओ ना